Hi, good evening, Aniket. Thank you for joining us today and congratulations for securing All India rank 48 in this examination. Thank you, sir. And Aniket, we are all very proud of you and would like to congratulate you again for securing this rank. So, Aniket, let us discuss certain strategies that will help future aspirants. And you have spent a lot of time in this journey. You have seen ups and downs in this entire journey. So, you know it very well. And you are on the other side. And कैसे वहां तक पहुंचा जाए कैसे फियर अनसर्टेनिटी सबको ओवरकम किया जाए प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन की जाए सो लेट अस ब्रीफली डिस्कस ये चीज है सो अनिकेत सबसे पहले टेल अस अबाउट योर यूपीएससी जर्नी Yes, sir. Sir, thank you so much for having me on your platform. Sir, I started my UPSC civil services preparation right after my graduation in 2021. I graduated from Ramjas College in mathematics honors. I gave four attempts to the UPSC. In my two attempts of 2022 and 23, I was not able to clear the preliminary stage itself, and I cleared all the stages in 2024 attempt, and I got into Indian Revenue Service, and in 2000 Civil Services 2025, sir, I got this rank. all right wonderful so having coming from someone who was not able to clear it twice I know it must have been very difficult particularly the prelims part so how was the feeling immediate feeling when you checked the pdf and you saw your rank 48 Yes, sir. Sir, we were anticipating that results will come in that week itself of the first week of March. uh, But I was yes also fearing that I need to prepare for my next attempt because I'll be having that attempt only. So I even studied few of the chapters of Lakshmikant, and when I saw the result, I was in a very panic mode, like whether my name will even be there in the PDF or not. Where will it? It will be in the list. Then I saw my name on the first page itself, sir, and it was dream come true for me. I was not able to believe that. Then I cross verified it with my roll number on my admit card, and then I realized that okay, this is something true, and I told my mother, and we were very happy, sir. great I still remember we were talking the night before the result Right, sir. There's so बिल्कुल much anxiety was हाँ there, sir. yes and the first time we talked I told you too ki, bhai, in your case it is very much possible that you can be in top 10 or top 50 Yes, sir. Your words came true, sir. Like you told me that you can absolutely be and top 10. because you had the potential and the result speaks for itself Thank you. and very well done Aniket so let us briefly talk about prelims because in the first two attempts you were not able to clear prelims so Yes, sir. what according to you worked in third attempt and fourth attempt that you became confident were able to clear it because Yes. from my experience prelims not clearing prelims is the most disheartening thing. Mhm. Yes, sir. Sir, I gave a examination in 2022 without much preparation. I was not even thorough with the static books. I did not even revise thoroughly the basic topics and subjects. I was lacking with the test series and everything. But sir, when I gave the 2023 attempt, even though I prepared little bit, but sir, that kind of questions which came during in 2023, it was pair based. All pair based questions were there. uh, So that was also a shock for me. So I was 23 not. was the toughest. Yes. So that was shock for me, and I did not apply my consciousness very well. I was not calm in the examination. I got Hmm. into panic mode, and I think there were more wrong answers. Like I got negative marking more. So Hmm. that was thing which was missing in me. In 2024 attempts, like I focused more on revision of the static subjects, polity, geography, economy, whatever the basic books are there. Secondly, I focused more on the previous year questions analysis. I analyzed thoroughly not only Hmm. the previous year papers of civil services examination, but also the other papers which UPSC takes like geoscientist, CDS, CAPF, Hmm. etc. So that For I prelims.
Yes, sir. So that I get the understanding what kind of questions UPSC generally asks, like the Hmm. polity questions, economy, geography questions. These questions will be generally same all Hmm. across the UPSC examinations. Hmm. So I Yes. revised them thoroughly and I gave some mock tests. While giving the mock test, I used to use the aptitude skills which I developed in PYQs analysis. Hmm. And I was making sure that I should increase my accuracy, my rate. Out of 80, I should be in a position to get correct 60 questions, 62 questions. That's how I improved. Hmm. Hmm. And in 2024 I cleared that paper, sir. In 2025 also I think I have cleared with a great margin. I qualified for forest examination also, sir. Okay, that's great. And how many mocks did you attempt? Because sometimes people say ki 10 mocks, 20 mocks, 100 mocks. What, according to you, is the right number? Sir, I believe that while I was solving the previous year papers, I did so many mocks. Like this was the mocks for me, like previous year questions. Hmm. But on the top of that, I mostly focused on, sir, full length tests. I used to generally Hmm. give all the full length test of Next IS that Anubhav is there. Then I Hmm. gave Forum IS simulators, Huh. all those Vision simulators. If, simulators. Yes. yes, yes. And if possible, sir, I also went for SFG, like SFG level 1, Forum. level 2. Yes. Yes. All Hmm. those tests were not paid ones, sir, but I bought it from the market Okay. and then I was giving it in Hmm. my home. Okay. All right. So And in the exam condition on OMR? huh, yes, sir, in the exam conditions, sir, like I was having a UPSC style OMR and I was Huh. bubbling it also simultaneously. Like the manner in which I used to attempt the paper, like I used to attempt, sir, in 3 rounds. Okay. Yes, sir. In 3 rounds, I used to attempt. Like, firstly, I used to go for polity questions, then economy, then Hmm. geography. Then, sir, I used to go for science and tech and environment. And at last, I used to go for history, art and culture, and the miscellaneous questions. Acha. So you did So, it subject wise rather than yes, sequence. yes, sir. Because polity for me was something conceptual based questions where Huh. it is quite easy Easier. also. Yes, Yes. as compared to other papers. So I should be in a position to understand that okay, 30 questions or 20 questions, I have done it right. Hmm. So that's why, sir. Yes, that's wonderful. And can you briefly tell, while analyzing PYQs, what exactly did you focus on? Because PYQ analysis, everyone says PYQ analysis, karo, but Yes, no sir. one really tells how it should be done. Hmm. So suppose, sir, I want to give you one example. Suppose UPSC has asked a particular question related to, I would say, some species or some kind of climate action tracker. One question Hmm. was there. Yes. So they have given 4 5 options are there. So I used to Google it, all those options, or else we can go to one of the coaching websites, like they have given the Hmm. description. So Hmm. ऊपर ऊपर के एक दो लाइन के जो डिस्क्रिप्शन होते थे, आई यूज टू राइट इट ओवर देयर. सपोज सर एक Okay. बार क्वेश्चन और आया कि नर्मदा, 3 लाइन्स आए थे, नर्मदा है, बीच में Huh. मालवा प्लेटू भी है, एंड Yes, लास्ट yes, yes. एक धुआंधार फॉल्स भी है. So तीन Waterfall. options. Yes. Yes. So 3 options are there. So I used to map those locations in the map. Hmm. एंड फिर उसके बाद सर मैं ये देखता था कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज देख ली, नर्मदा के जो उसका जो स्टार्ट होता है वहां से, है ना, Origin. Yes. ओरिजिन देख लिया. हाँ, फिर Hmm. नर्मदा किन किन एरिया से जा रही, स्टेट्स को भी देख लिया. सो दिस इज व्हाट आई Hmm. वुड से हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, आई वुड से एनालिसिस. एंड सेम मैंने धुआंधार फॉल देखा, तो अब धुआंधार फॉल ये भी देख लिया कि ये फॉल जो है किस लोकेशन में है. फिर जॉग Hmm. फॉल्स के ऊपर देख लिया, फिर अदर फॉल्स के बारे में भी देख लिया, कोई फॉल्स अगर न्यूज में Hmm. है तो उसके बारे में देख लिया. सूख, कोई Okay. फॉल्स अगर कुछ एक्सट्रीम चीजों के लिए सूखी हुई है, Hmm. कुछ भी है, तो यूपीएससी हैज आस्क्ड कि व्हिच ऑफ द लेक इज ड्राई, है ना. Huh. तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा लेंथ ब्रेथ में एनालिसिस कर सकते हैं. इट इज अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, बट अगर आप ये कर लेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा. सो दैट्स हाउ आई एनालाइज्ड एवरी ऑप्शंस. और Hmm. कई बार जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सर एंड्स के ऊपर, आई थिंक यूपीएससी ने क्वेश्चन Hmm. पूछा था एंड्स के बारे में, फंगाई और एंड्स का कुछ रिलेशन Hmm. करके. तो एंड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि अच्छा एंड्स और क्या-क्या करती हैं, विकिपीडिया के 1-2 लाइन्स पढ़ लिए, क्या पता वहाँ से उठा के कुछ पूछ ले. तो दैट्स Hmm. हाउ सर. लास्ट टाइम एक आईयूसीएन का था, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन.
तो IUCN के और सारे रिपोर्ट्स पढ़ लिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हम्म, मैंने देख लिया और सारे रिपोर्ट्स, तो गूगल कर करके थोड़ा ओके। बहुत जो है हम्म, कि क्या पता कल को आ जाए एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाए या हम्म, कुछ लॉजिक हम्म, नॉलेज से हाँ। ही सॉल्व हो जाए। So So that's that all, sir. I had like pre-existing knowledge will help you while yes, sir. eliminating. Just brief, Yes. brief one, two, three Huh. lines. Mm. Yes, sir. So overall, how much time did you spend while analyzing a mock or a PYQ? Sir, in order to analyze a PYQ, I used to take 1 year ka PYQ, like 2000, Mm, suppose 23 ka मैंने ले लिया, and I used to mm, analyze it uh, end to end, sir, 1 to 100 question, and it used to take, sir, 5 to 6 hours. But I was having friend also, तो साथ में दोनों mm, करते थे, तो we were shouldering the mm, this analysis वाला part, sir, तो थोड़ा वो वहाँ पे मेकअप हो जाता है, कुछ यूट्यूब से सीख लिया, यूट्यूब mm, पे भी अब yes. एनालिसिस वगैरह आ जाता है, Mm, तो mm, अब yes. वहाँ से भी सीख लिया, और क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लॉजिक बिल्कुल. रिपीट होती है, तो इसमें एप्टीट्यूड भी डेवलप कहीं ना कहीं होता है कि ओके, व्हाई द एग्जामिनर हैज पुट अ पर्टिकुलर ऑप्शन देयर, और Absolutely. बट Mm, यस, एंड व्हाई द स्टेटमेंट हैज बीन फ्रेम्ड इन सच अ वे, mm. सो वी आल्सो किधर फाइंड ट्रैप दैट है, कहाँ ट्रैप। फंसाना चाहते हैं? यस। यस सर। सो वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो एंड फिर जैसे आपने वो सब सीखा, आप टेस्ट में उसको लगाओ, टेस्ट में हुँ, आप लगाओ और वहाँ पे एक्यूरेसी भी अपनी आप जो है चेक कर लो। ठीक है, तो एक्यूरेसी मैं देखता था सर, एंड टेस्ट में मुझे 90, 95 ऐसे मार्क्स आते रहते थे। मैं हर बार टेस्ट हुँ, लगाता था सिमुलेटर्स के। तो हुँ, आई वाज़ इन अ गुड पोज़ीशन कि मेरा तो क्लियर हो जाएगा, एंड ओके, सेम सेम मैं सीसेट के साथ करता था सर। हुँ, ऑलराइट। सो आफ्टर प्रीलिम्स लेट अस टॉक अबाउट मेंस एंड प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है या वन्स यू आर डन विद प्रीलिम्स, स्टूडेंट्स यूजुअली वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर द रिजल्ट. यस सर। So did you also like wait for the result, went out for a trip or something, or you started immediately preparing for mains? सर, जैसे मैं आपको ये बताऊँ कि प्रीलिम्स का आप जो है वेरियस आंसर कीज़ जो कोचिंग की आती है, अब तो हुँ, प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी, तो देयर इज़ यस, नो वरी फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैंने उसको देख लिया था। आई वाज़ गेटिंग अराउंड 110 मार्क्स बोथ इन बोथ हुँ, पेपर्स। तो आई वाज़ श्योर कि CSAT and CS, yes. हाँ, सीसेट और जीएस में मैं तो क्लियर हो जाऊँगा, कोई इश्यू नहीं था मुझे। हुँ, तो सर मैंने वही 4-5 दिन का ब्रेक ले लिया, थोड़ा-सा ब्रेन को भी रिलैक्स करने के लिए। तब फिर मैं सर, क्योंकि मेरे पास यही अटेम्प्ट बचा था एक तरीके से व्होल हार्टेडली, अदरवाइज़ बिकॉज़ आई वाज़ ऑलरेडी इन हुँ, सर्विस, तो आई यूज्ड टू गो टू हुँ, द अकेडमी, अगर नहीं क मैं निकाल पाता तो। तो फिर सर मैं मेंस के प्रिपरेशन पे लग गया था, एंड आई केम टू नो अबाउट योर थिंक्यू आईएएस, जो आपके नोट्स होते थे, वन पेजर नोट्स, दे आर वेरी हैंडी एंड दे आर वेरी क्रिस्प नोट्स टू द पॉइंट। आपने उसमें बहुत सारे कंटेंट डाल दिए थे फॉर जीएस 1 2 3 4 एवरी पेपर। तो वो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि मेरे थोड़े नोट्स सेग्रीगेटेड तरीके से थे, थोड़े से हुँ, कंसोलिडेटेड नहीं थे, सो वो कहीं ना कहीं हेल्प हो गया था। उसमें आपने सर इंडियन एक्सप्रेस के कंटेंट डाल रखे थे, यस, और जो है एक्सप्लेन पेजेस के उसमें काफी कंटेंट हुँ, थे, तो साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों में तो मुझे इशू नहीं था। आई थिंक क्वेश्चंस भी काफी आ गए थे आपके जीएस 3 में, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए आसान काम हुआ था मेंस के लिए सर। तो आई वाज रीडिंग दोस थिंग्स आल्सो, एंड आई वाज putting lots of hard work to my optional anthropology हुँ. as well as GS papers, So right from the अगर prelims. okay, right after you got done with Right the after the prelims. prelims. Yes. So if we talk about mains and particularly GS, so what according to you is the most important thing if you have to, let's say, prepare again or give advice to the future aspirants? So what exactly? Because you were also able to clear it twice in a row. Yes, sir. So what according to you works in mains? Sir, I would say firstly, sir, one should have a decent amount of content or knowledge according Hmm. to the syllabus of the question. Secondly, sir, I would say after having the content or knowledge, one should be in a position to address the demand of the question. And answer writing practice is essential. It is something that is Hmm. non-negotiable. If one can do answer writing on a daily basis, like 4 5 questions or 2 3 questions of the Hmm. previous year papers, I think they will be in a very better position. वो बहुत अच्छे से marks कर सकते हैं, but it is only one thing that examiner will reward only when the person has written according to the demand of the question.
मेरे पास कितने भी कंटेंट हो जाएंगे, अगर मैं डिमांड के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, एग्जामिनर आई थिंक सो कि वो मार्क्स नहीं देगा सर। तो ये एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें इवन दो सर आई आई यूज्ड टू ऑलवेज डू दिस कि किसी किसी क्वेश्चंस में इवन दो आई डू नॉट हैव द कंटेंट कंटेंट। अच्छे से, बट मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को उसी हिसाब से लिखूंगा, इवन दो क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो क्योंकि उस पे एग्जामिनर मुझे ज्यादा मार्क्स देगा रेदर देन मुझे जो आता है मैं लिख दूंगा। बिल्कुल तो हाँ, बिल्कुल। तो वो मैं हमेशा करता था सर। तो अगर मुझे फिर से देना होता तो सर मैं जो इंटेंसिटी है प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ऑन अ डेली बेसिस, उसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देता, उसकी हम्म उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती, उस पे और माइक्रो इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, उसको ज्यादा मैं बेहतर करता सर। Okay, all right. And PYQs, what was the role of PYQs mains के लिए? सर मेरे लिए तो पीवाईक्यूज मेन प्रीलिम्स में भी बहुत इफेक्टिव रहा एंड मेंस में भी बहुत इफेक्टिव रहा, बिकॉज पीवाईक्यूज आई वुड से दीज आर द आई वुड से सर बैकबोन ऑफ यूपीएससी पेपर्स। Like Hmm. if one can write and one can have the solutions of PYQs of at least 10 years, 7 to 10 years. Like I did the PYQs from 2017 till 2024 sir. तो ये मैंने किया Okay. था, 24 तो अटेम्प्ट ही दिया था, 23 तक के तो मैंने पेपर्स अच्छे से लिखे थे। और उसमें खुद जो से सारे आंसर्स लिखे थे? मैं सर उसको लिखता था, क्योंकि डेली मैं यही करता था। आई हैव अ टाइम टेबल कि मैं सुबह उठता था एंड 12-1 के आसपास में मैं जीएस के आंसर्स लिखता था, एंड देन 2 बजे से फिर मैं एंथ्रो पढ़ता था और शाम में 9-10 बजे एंथ्रो करता था, एंथ्रो के आंसर्स लिखता था, एंड आई यूज्ड टू गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम चैट जीपीटी। तो Okay. आई वाज डूइंग इट विदाउट एनी फेल। मतलब Hmm. मैं इसको करता ही था। 60-70 डेज जो बीच में थे, उसमें आई Pre यूज्ड टू and राइट mains इट ऑन। gap में हाँ, every वो day you used to write 3 to 4 and यस, PYQs only. पीवाईक्यूज ओनली सर। लाइक एंड उसमें भी वही देखता था कि क्वेश्चंस देख करके समझ में आ रहा है कि ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, Hmm. सपोज क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा व्हाट आर सुनामीज, या क्वेश्चन वो Hmm. सिंपल सा कुछ दिया कि तो वो सारे छोड़ देता था। बट जब भी मुझे लगता था कि सोसाइटी के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के कॉम्प्लेक्स हैं, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते उसको छोड़ देता था। बट हाँ, Hmm. जो मुझे लगते थे कि ये थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लूं, एंड आई यूज्ड टू गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम चैट जीपीटी। उससे प्रॉम्प्ट लेता था सर अच्छे से। उसकी मैं सीखता था कि ओके व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, एंड वो Hmm. मुझे अच्छे से बता देता था। एंड आई यूज्ड टू ट्रैक माय प्रोग्रेस आल्सो। लाइक अगर मैं उसको 15 डेज बाद पूछूं कि हैज माय आंसर्स इंप्रूव्ड, एम आई एबल टू राइट गुड आंसर्स, लाइक क्या क्या क्वालिटीज मेरी इंप्रूव हुई है, तो वो ट्रैक भी Hmm. रखता है। तो वो एक अच्छी बात भी है कि आपको एक टेक्नोलॉजी आपको वहां पे हेल्प कर रही थी। तो Hmm. I wrote that because I was always telling myself, sir, like this is the only opportunity which I will get to write in a very good mood, Hmm. है ना, एफर्ट्स में लगा सकता हूँ, अदरवाइज तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगी, है ना। Hmm. एंड तो मैं यही करता था। तो मैं ये सोचता था कि इसको कर लेते हैं, अभी 50 दिन की बात है, 60 दिन की बात है। सो अभी थोड़ा सा एफर्ट लगा लेते हैं, थोड़ा सा Hmm. पेन ले लेते हैं। सो बाद बाकी बाद में अच्छा होगा फिर। सो दैट्स हाउ सर हाँ, आई डिड दैट। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा हुआ भी। एंड फिर फुल लेंथ मॉक और फुल लेंथ टेस्ट डिड यू प्रैक्टिस एनी? और लास्ट में जैसे वो विजन के या फोरम के सिमुलेटर अभ्यास वगैरह होते हैं, डिड यू अटेम्प्ट दोस टेस्ट? यस सर, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती थी कि मैं सपोज मुझे संडे को टेस्ट देना है, मैं सेम वही काम करता था सर। सुबह 9 से 12 फोरम की एमजीपी आती है सर, सो आई यूज्ड टू गिव यस। दैट। तो मैं सुबह 9 से 12 वो देता था, एंड फिर दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे 5:30 तक मैं एंथ्रो लिखता था। और सेम ओके। मैं पूरे वीक करता था। आंसर राइटिंग में भी सेम काम करता था। तो मैं एंथ्रो और जीएस को पैरेलली लेके चलता था। आई वाज नॉट लिविंग वन। तो थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होता है सर, यस, बट आई वाज बिल्कुल। थिंकिंग कि थोड़ा सा करते हैं उस समय। तो So those slots में you divided your day, first यस सर, half for optional or GS हाँ, and second half दूसरे के लिए, राइट and this राइट, you did for the entire प्री मेंस के period. लिए। Yes, पूरे 90 days or 80 days में you यस did the exact same thing. यस, एंड सेम सर, That जिस दिन मुझे फुल लेंथ लगाना होता था उस दिन मैं डेली आंसर नहीं करता था। तो hmm, उस दिन मैं सुबह एमजीपी लगा लिया और शाम में मैंने एंथ्रो लगा लिया सर। that's good, that's good. And paper complete करने में कभी कोई difficulty तो नहीं आई? Were you अ, able to complete it?
सर पेपर कंप्लीट करने में मुझे कभी डिफिकल्टी नहीं आई आमतौर पे। हम्म। ये इसलिए हो पाया सर, उसके 2 रीज़न हैं। पहली बात तो मैंने डेली आंसर राइटिंग इतनी करी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंस्टेंटेनियसली हो जा रहा था, कि मैं हम्म। क्वेश्चन पढ़ता था तो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है ना अच्छे तरीके से वायर हो जाता था, डिमांड में समझ जाता था, क्या हेडिंग्स हम्म। बनेगी, कैसे क्या लिखना है। बट यही होता था कि उसको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होता था, आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आ गया था, तो वो हम्म। कभी इश्यू हुआ नहीं। बट हाँ सर, जैसे कि थोड़ा बहुत कभी न कभी हो जाता है, बट वो स्पीड हो जाती है लिखते-लिखते, क्योंकि इतने टेस्ट लिखे हैं यस, इतने, तो बिल्कुल। वी आर एबल टू मेंटेन दैट। तो मैं ये सोचता था सर, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अगर मैंने 17-16 क्वेश्चंस में भी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर दी, तो हम्म। अच्छा मार्क्स आ जाएँगे। बिल्कुल, यस, यस। एंड एट टाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है, देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हिच इज़ अ कंप्लीट बाउंसर फॉर एवरीवन, यस सर। या फिर दे आर आस्किंग इट फॉर 15 मार्कर 3 पेजेस एंड कंटेंट हाँ, नहीं है फिल करने के हाँ, लिए। हाँ। सो हाउ यस। डिड यू टैकल ऐसे क्वेश्चंस? सर उसके लिए मैं ये सोचता था कि एग्जामिनर को भी पता है कि इसके कंटेंट कम है, तो दे आर जस्ट चेकिंग कि हम कैसे उसको कॉन्शियसली पेज को यूटिलाइज करते हैं। तो हुँ, सर मैं उस जैसे पिछले बार ऑरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस के ऊपर यस, सवाल आ गया था 15 मार्कर। हाँ, 15 ट्विस्टर में, पे यस। ट्विस्टर पे भी सवाल आ गया था, तो बहुतों को नहीं पता था। तो सर हुँ, ये सारे सवाल मैं तब लिखता था जब मेरे सारे सवाल हो जाते थे, जो मुझे आते हैं। फिर उसके बाद सर मैं ऑरोरा बोरियोलिस जैसे 10 मार्कर का क्वेश्चन था, तो मुझे डायग्राम्स आते थे सर। आई मेड द डायग्राम्स कि कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स जो है सन के रेज़ को करती है डिफ्लेक्ट, एंड हुँ, वहाँ पे ये हुँ, सब पोल्स वगैरह पे बनता है। तो ये कहीं न कहीं सर 1 डेढ़ पेज का लिख दिया, तो डायग्राम्स वगैरह बना दिए। फिर मैंने थोड़ा बता दिया कि कुछ भी रीज़न्स बता दिए, किससे ये इसके इसके क्या-क्या इम्पैक्ट होते हैं, टूरिज़्म में फ़ायदा हुँ, है ना? हुँ, और यही सब बातें लिख-लिख करके, मतलब थोड़ी बहुत जो है, जो अंडरस्टैंडिंग से जितनी हो हुँ। सकती है, थोड़े रीज़न्स बता दिए कि कुछ क्लाइमेटिक कुछ जो है फेनोमेनन होता उसी है। से लिंक न्यू डायमेंशन ओपन कर बस दी। फ्यू डायमेंशंस, क्योंकि एग्जामिनर इज़ आल्सो नोइंग कि ये कंटेंट कम है सभी के पास। इट्स जस्ट हाँ, दैट कि आप कितने और अच्छे से लिख सकते हो उसको। हुँ, मैंने हुँ, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पहले ही लिख दिया 1 डेढ़ पेज में। हुँ। बाद बाकी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मतलब उसी से रिलेटेड। सो दैट्स व्हाट आई वाज़ डूइंग सर। ग्रेट। एंड डिड यू मेक डायग्राम्स, मैप्स जैसे बोलते हैं सिक्योरिटी में, नक्सलिज्म रेड कॉरिडोर बनाओ, हाँ, एंड हाँ। बाकी जगह भी मैप्स, हिस्ट्री में मैप्स, डायग्राम्स यूज़ करो। सो डिड यू डू दैट इन योर आंसर्स? यस सर, आई डिड दैट। लाइक इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने किया है, वो डायग्राम्स बनाए हुँ, थे। इस बार जीएस 3 में भी एक कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन का क्वेश्चन आया था, उसमें भी बनाए थे। तो मैं डायग्राम्स को सर उतना ही बनाता था जितना उसकी ज़रूरत होती थी। सारे हुँ, क्वेश्चन्स में नहीं बनाता था। मैं ज़बरदस्ती डायग्राम्स नहीं डालता था या फ्लो हुँ, चार्ट नहीं डालता था। इफ दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ नीडेड, और मुझे वहीं पे आ गया ऑल ऑफ अ सडन इन माय ब्रेन कि ये डाला जा सकता है। तो हुँ। वही मैं सर स्पेस में, छोटा-सा स्पेस में मैं उसको डाल देता था। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू हुँ, डू इट। एंड हाउ डिड यू टैकल करंट अफेयर्स? उसके लिए डिड यू प्रेफर न्यूज़पेपर या जैसे पीटी 365 या बाकी कंपाइलेशन आती है मैगज़ीन्स? व्हाट डिड यू सर यूज़? मैं मुझे तो करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ी नहीं सर, आई वाज़ जस्ट यूजिंग योर नोट्स। तो आई वाज़ टोटली रिलाइंग ऑन योर नोट्स, तो दिस टाइम मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड सर मैं टेस्ट सीरीज़ लगा देता था, तो वहाँ से ही मुझे करंट ओके, अफेयर्स मिल जाता। हाँ, तो उसके भी यू यूज़ द मॉडल आंसर्स, एनालिसिस हाँ, करते हो जैसे प्री में किए बिल्कुल। थे? बिल्कुल सर, मैं हमेशा सॉल्यूशंस को याद कर लेता था सर, बोथ फॉर माय हुँ, एंथ्रो ऑप्शनल एंड जीएस में भी एमजीपी के। बिकॉज़ कहीं न कहीं सर वो कंटेंट हो सकता है डायरेक्टली यूज़ ना हो, बट उसके कंटेंट कहीं न हुँ, कहीं इनडायरेक्टली किसी न किसी क्वेश्चन्स में यूज़ हो जाएँगे, और इस बार हुए भी हुँ, कहीं न कहीं जगह पे। तो वो हुँ। मैं यूज़, कभी कोट यूज़ हो जाए, कभी कोई पॉइंट्स यूज़ हो जाए, ऑप्शन तो कर लेता था सर याद। Okay, okay. And coming to notes, did you make your own one-pager notes? सर वन पेजर नोट्स मैं सर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने के लिए थोड़े जीएस, इम्पोर्टेंट, ऑप्शनल, किसी के भी? हाँ, बनाए थे सर, थोड़े ऑप्शनल के, मतलब अपने जीएस के भी बनाए थे, क्योंकि 1 दिन पहले आपको रिवाइज़ करना होता है, क्योंकि हुँ, लगातार 1, 2, 3, 4 होता है। तो यस। हालाँकि उतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बट 3-4 पेज के ही बनाए थे। वही हॉट टॉपिक्स लिखे थे, या वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुँ, लिखे थे, या डायग्राम्स बनाए थे, जो मुझे लग रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं भूल जाऊँगा, हुँ, मुझे लिखना ही लिखना पेपर में, बट उसके हुँ। ही बनाए थे। वो मैं एक नॉट शॉर्ट नोट्स फॉर में लिख, एवरी टॉपिक। नॉट फॉर एवरी टॉपिक, क्योंकि उसको थोरोली रिवाइज़ किया था सर।
और उसको ओके। डेली आंसर राइटिंग में भी कर रहा था, तो हम्म। वो नहीं किया था। बट हाँ, एंथ्रोपोलॉजी के बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स, तो वो थोड़े कम पेज के हम्म। ही थे, तो एंड वी आर गेटिंग हम्म। 5 days ब्रेक, तो आई वाज बिल्कुल। एबल टू रिवाइज इट, तो उसके ज्यादा मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए सर। All right, all right. And coming to anthro, you scored, I guess, the highest marks this यस सर। time in anthropology. So, what is your suggestion to those preparing anthropology, and what do you think worked for you this time? And compare करें अगर last time के score से, so what extra do you think you did that worked in your favor? Yes, sir. Sir, last time I got 272 marks. So Hmm. that was also one of the good A good marks. score, yes. Yes, sir. So there is a jump of 44 marks. So I did, sir, one thing, but I did not expect कि 300 plus marks आएंगे. So sir, I only followed Karandeep sir crash course this time. Like last time, sir was not having crash course. So Hmm. this time उनके crash course क्या हुए सर, जो भी मेरे conceptual gaps थे वो Hmm. फिल कर दिए उन्होंने, एंड क्लैरिटी और आ गई टॉपिक्स के ऊपर। तो वन Okay. थिंग वाज दैट, एंड सेकेंडली सर जो उनके टेस्ट के मॉडल आंसर्स थे, आई thoroughly revised them, like most of their questions came in the examination itself. एंड थर्ड सर, जो पीवाईक्यूज होते हैं एंथ्रो के, सेम Hmm. प्रैक्टिस मैंने किया था जीएस की तरह, डेली आंसर राइटिंग आई डिड दैट, एंड आई यूज्ड Hmm. टू गिव द टेस्ट, एंड आई रिवाइज देम वेरी थॉरली। इतनी बार उसको रिवाइज किया सर, आई डू नॉट हैव द काउंट, बट यस आई रिवाइज इट मोर देन 4-5 times, सो दैट उनके कंसेप्ट्स, उनके जितने भी सारे जो कंटेंट है ना, Hmm. मेरे अच्छे से आई एम इन अ पोजीशन टू इम्बाइब इट। तो बहुत अच्छे Hmm. से इम्बाइब कर दिया था, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा दिक्कत नहीं थी सर। तो आई डिड दैट, तो वो मैंने किया और सारे टेस्ट लिखे। तो यही मुझे लगता है कि सर इस टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट Hmm. जो किया, तो वो रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं आ So, गए सर। how many tests did you write for anthro? सर Pre देयर और आर मेंस के 7, गैप में? यस सर, देयर आर 7 सेक्शनल टेस्ट सर। तो सात के सातों मैंने सेक्शनल टेस्ट लगा दिए, उसके सॉल्यूशंस अच्छे से ओके। पढ़ लिए, एंड हुँ। इंटायर सिलेबस के सर पीवाईक्यूज लिख लिए थे, पेपर 1 पेपर 2 के। तो ऑलराइट। बिकॉज सर की क्रैश कोर्स होती थी, तो उसी हिसाब से पीवाईक्यूज हुँ। लिख लेता था। तो 2 दिन में सर ने हुँ। अगर 3 चैप्टर कर लिया, तो 3 चैप्टर के मैंने पीवाईक्यूज कर ओके। लिए। So you were very disciplined and following it यस सर, dedicatedly. बिल्कुल So जो मैं हो रहा प्री, था साथ में you kept on covering यस it and यस PYQs analysis सब कुछ with यस no backlogs. बैकलॉग्स कभी-कभी हो भी गए, तो सर उसको बैलेंस करता था। अब किसी दिन रोज तो सेम नहीं रहेगा, बट हाँ, हुँ। आई ट्राई टू डू इट टू द बेस्ट। 95% तो मैंने उसको किया, क्योंकि उस समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखा सर, हुँ। और मेंटली बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग रहा था उस समय। तो हुँ। आई वाज ऑलवेज टेलिंग माय ब्रेन कि यही 2 महीने हैं जो करने हैं, इसके बाद नहीं करना है। तो हुँ। आई पुश्ड माय सेल्फ सर। बिल्कुल। So coming to this part, you know you have written 2 mains. So जो pre और mains का gap होता है that is very challenging. यस Everyone says that we have to be consistent, but it is very difficult to stay consistent because, like you said, health constraints होते हैं, then there are ups and downs. फिर पढ़ते-पढ़ते ऐसे होता है कि fatigue हो जाता है, burnout हो जाता है, ठीक है? लगता है कि सब कुछ छोड़ दो. So how did you overcome those emotions? Because मेरे साथ भी personally बहुत ज़्यादा ऐसा I felt in my 5 mains and बहुत मुश्किल होता है उसे tackle बहुत करना. मुश्किल होता है। So यस how did you do it? How did you tackle that? यस सर, सबके साथ यही होता है सर कि सिंस आई आई फेल्ड इनटू प्रीलिम्स, मेरे पास ऑलरेडी सर्विस थी सर। तो मैं सबसे यही हुँ। सुनता था कि कॉम्प्लिसेंट नहीं रहना है, इफ यू वांट टू डू हैव द ड्रीम सर्विस जो सब डिजायर करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कॉम्प्लिसेंट नहीं रहना है। एंड दूसरी बात सर, आमतौर पे सर मैं विराट कोहली का बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। तो क्रिकेट देखते ही रहते हैं, तो आई एम एडमायरिंग दैट पर्सन अ लॉट। तो उनकी जो रेजिलियंस है आज के एज हुँ। में, तो आई लाइक हिम अ लॉट। तो वो इतनी मेहनत करते हैं, ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि आगे क्या होगा पता नहीं है, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस सही करोगे, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आने ही आने हैं। तो आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। तो वो जो निष्काम कर्म वाली बात होती है ना सर, गीता में जो भगवान ने कहा है, हुँ। वो मैं हमेशा फॉलो करता था। मतलब अच्छा होगा बुरा होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एन नंबर ऑफ हुँ। फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। बट मैं प्रोसेस को जो है, जो एक यूपीएससी के लिए उस समय डिजाइन है कि प्री मेंस में ये प्रोसेस फॉलो करोगे आप, तो शायद आपके अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। तो मैं वही चीज अपने मन को कहता था कि इस हुँ। प्रोसेस को फॉलो करना है,
प्रोसेस में कमी नहीं करनी है। कल को मन में ये गिल्ट ना हो कि वो काम हम्म, नहीं किया हमने तभी रिजल्ट नहीं आया। तो वो चीज़ मेरे हमेशा मेरे को सर टिक इन करती थी। मैं अपनी फैमिली के टच में रहता था, फ्रेंड्स के टच में रहता था। तो कभी भी ऐसा अगर डाउन फेज़ आया तो आई यूज्ड टू टॉक विद देम एंड वहाँ से हम्म, काफ़ी मुझे जो है एक सपोर्ट मिलता था, हेल्प मिलता था, तो फिर जो है रिवाइव होता था सर। तो मैं यही करता था। बट वन थिंग वाज़ कांस्टेंट कि प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस अच्छा करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ओके। अनिकेत, आई वुड लाइक टू आस्क अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी काफी बार प्रिपरेशन में ऐसा लगा कि व्हाट इफ नहीं हुआ तो क्या। हाँ, एक थोड़ा सा एट टाइम्स देयर इज अ नेगेटिव इमोशन व्हेन यू सी द कंपटीशन आउट देयर, यू सी द टॉपर कॉपीज कि या वी आर नॉट एबल टू मैच दैट लेवल। यस तो सर। अगर उनका नहीं हुआ तो हमारा नहीं हुआ, सो व्हाट। सो यस इस सर। इमोशन को, फीलिंग को हाउ डिड यू ओवरकम? यस सर। मैं आपको बताऊं, मैं 2023 में जब मेरा सर पेपर नहीं क्लियर हुआ प्रीलिम्स का, आई गिव दिस एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन एंड सीजीएल का मैंने दिया, मेरा पेपर प्री हो गया, मेंस मेंस भी हो गया। बट आई आई वाज नॉट सेलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट क्योंकि उसमें सर्विस प्रेफरेंस देनी होती थी एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो मेरा लिस्ट में मतलब फाइनल लिस्ट में नाम ही ओहो। नहीं। तो ओके। हाँ, तो नाम नहीं आया तो क्योंकि मुझे ये था कि अब 2 अटेम्प्ट्स हो गए, आई हैव टू गो फॉर सम फाइनल। बैकअप, यस। यस सर। हाँ। तो चाहिए था तो तभी मैं हो गया, लेकिन फिर 2024 का अटेम्प्ट मैंने सोचा थोड़ा-सा एफर्ट लगा के कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा हम्म, इश्यू हुआ था, तो वो हो गया एक गो में सर। तभी मैंने सोचा नहीं, प्री हुआ तुरंत मैं मेंस में फोकस चला गया, मेंस हुआ तुरंत मैं इंटरव्यू में चला गया। तो जैसे इंटरव्यू हो गया एंड सिलेक्शन हो गया तो एक सेंस ऑफ ये रिलीफ था कि हो जाएगा। लेकिन बीच में ये था कि अगर कहीं पे भी मेरा नहीं होता है, प्री हो गया चलो मेंस नहीं हुआ, तो आई वाज़ प्रीटी श्योर कि फिर मैं कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दूँगा। मे हम्म, बी सीजीएल, बैंकिंग किसी का भी जो मैं 4-5 महीने में प्रिपेयर कर लूँ, एक बार एक स्टेबल जॉब हो जाए, फिर देखते हैं यूपीएससी हम्म। करने का। तो ये मेरे दिमाग में था सर। अदरवाइज़ मेरे पास एक थोड़ा-सा लॉन्ग बैकअप था कि आई वाज़ अ मैथ्स ग्रेजुएट, तो फिर मैं एमएससी करता एंड फिर उसके आगे मैं बढ़ता सर। Hmm. All right, wonderful. So, Aniket, one last thing that I would like to ask you is ki, what message would you like to give to future aspirants? और अगर फिर से अनिकेत पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहा है, so हुँ, हुँ। what message would you like to give from यस your सर। journey of UPSC? Yes, sir. Sir, my message would be to future aspirants would be firstly, be honest and truthful to yourself. Don't do different kind of activities जिसमें आप जो है efforts नहीं लगा रहे हो. Try to put in your efforts to UPSC preparation. Be very, very honest to your parents as well. Hmm. एंड सेकेंडली सर आई वुड से बी वेरी मच मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये एग्जाम आपसे जो है आपके 1 डेढ़ साल 2 साल में भी ज्यादा भी आपसे लेगा ही लेगा और डेडिकेटेड एफर्ट मांगेगा। एफर्ट भी आपको राइट डायरेक्शन में लगाना है एंड उसके लिए आप मेंटोर्स, टीचर्स या जो सिलेबस वाइज जो प्रिपरेशन होती है, थोरो प्रिपरेशन होती है, वो करनी होती है। एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी बोरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। यू हैव टू रीड द सेम कंटेंट, सेम बुक अगेन एंड अगेन एंड हैव द लिमिटेड रिसोर्सेस। क्योंकि हर रोज न्यूज़पेपर आएगा, नया कंटेंट आएगा, नया न्यूज करंट अफेयर्स आएंगे, तो आपको वो पढ़ते ही जाना है। तो आप जितना बोरिंग होता जाओगे, एक ही चीज को सुबह उठ करके पढ़ना है बार बार, तो आप वो करने में आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट यूपीएससी विल बी देन इजी फॉर यू। बिल्कुल। So, staying consistent, doing the boring things, that is the key to success. इन यूपीएससी सर आई वुड से। Bilkul, absolutely, absolutely, and very, very, very well done, Aniket. Congratulations once again, and we are all very, very proud of you, Aniket. Thank you for taking out time and joining us and sharing your beautiful journey with us. You have worked hard. You have shown great resilience and dedication despite the initial failures and prelims. And would like to congratulate you once again for clearing it. And we are all proud of you, and we are sure you'll make a great civil servant. यस, थैंक यू सो मच सर।